تو موبائل جب ہے تبھی تو آپ اپ گریڈ کر پاتے ہو نا سارے سافٹ ویئر کو. اگر موبائل ہی نہیں ہے تو اپ گریڈ کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو بلا تسبیح ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان. لیکن ابھی ایمان والے نہیں ہوئے. کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو ہو گئے، ابھی ایمان والے نہیں ہوئے. اے مولا ابھی ایمان والے کیسے ہو گئے؟ ایمان والے کیسے ہو گئے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھا مسلمان تو ہو گئے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنی ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال و زر اور ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. پتا کیا چلا؟ محبت رسول یہ ایمان کا حصہ ہے. تو کلمہ پڑھا. بھیا کیا کر رہے ہیں آپ مائک میں؟ یا تو بند کر دیجئے. سبھی کو وہی چلیں گے، ہر کوئی وہی چلیں گے. ہر کوئی تو مائک کے بات بولی. آواز صحیح چلے گی، اس کو آپ نے کم کر دیا. پھر اس کا منہ کو دیکھ، اس کا منہ دیکھ، دیکھ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گئے، اور حضور کی محبت حاصل کرنے سے ایمان والے ہو گئے. اگر کوئی شخص لاکھ نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اور مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو تم پر ہم نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ مصطفیٰ کو بھیج کر کے. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آقا کو بھیج کر اللہ نے احسان کیا. اب دوستو، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. مسلمانوں میں 73 ڈویژن، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے دیکھو رب کا کلام بلاغت دیکھو، ایمان والوں پر احسان. اب اس روئے زمین پر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا کون ہے؟ اس محفل میں جو آئے ایمان والا کون ہے؟ اسٹیج پر جو بیٹھے ایمان والا کون؟ تو اگر آپ اس کی جانچ میں نکلو گے تو کوئی مسجد میں تسبیح پڑھتا رہے گا، کہے گا ایمان والے ہم ہیں. کوئی روئے گا اللہ کے حضور، ایمان والے ہم ہیں. کوئی سجدے پر سجدہ کر رہا ہے، کہے گا ایمان والے ہم ہیں. کوئی حج کر رہا ہے، کہے گا ایمان والے ہم ہیں. کوئی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے خنائق کی صورت میں کہے گا ایمان والے ہم ہیں. کوئی اونچا پیجامہ پہن کے کہے گا ایمان والے ہم ہیں. کسی کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہوگا، کہے گا ایمان والے ہم ہیں. اب نوجوان پھسلے گا کہ ایمان والا ہے کون؟ ہم جانے تو کیسے جانے کہ اللہ کا احسان کس پر ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مومنوں پر احسان کیا، وہ احسان مت کون لوگ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 12ویں کے دن میں ربیع الاول کے مہینے میں جو میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں، سمجھ جانا یہی ایمان والے ہیں. اس لیے کہ وہ محفل میلاد کو سجا کر کے خدا کے احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں.
احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے دوستو، حضور کی محبت ایمان کی سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ آج اتنی رات تک آپ بیٹھے ہو، یہ میرے لیے نہیں، جلسے کے لیے نہیں، آپ کو خود نہیں معلوم، آپ کی روح کو پتا ہے، آپ بیٹھے ہو حضور کی محبت میں۔ اس کی محبت میں ابھی آپ نے اتنے پیسے دیے، نذرانے دیے، اعظم نے پڑھا، ان کو پیش کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بتاؤ، ایک چیز میں پوچھتا ہوں، جب کوئی سودا چلتا ہے مارکیٹ میں، آپ اگر بزنس کرتے ہو، زمین خریدنا ہے، تو آپ بغیر دیکھے سودا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ پہلے دیکھتے ہو، دیکھنے کے بعد قیمت لگاتے ہو، پھر اس چیز کو لیتے ہو۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہمارا آپ کا اصول یہ ہے، کوئی بھی سودا ہم کریں دیکھنے کے بعد کرتے ہیں، دیکھنے سے پہلے نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، اسی روئے زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی ہے جو 1400 سال پہلے تقریباً دنیا میں آئی، اور ہم ملکی والوں نے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی جان کا بھی سودا کیا مال کا۔ وہ کون ہے؟ آمنہ کی لال ہے۔ وہ کون ہے؟ خدا کا حبیب ہے۔ وہ کون ہے؟ انبیاء کا سردار ہے۔ وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کا بابا ہے۔ وہ کون ہے؟ حسنین کا نانا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر کا آقا ہے۔ وہ کون ہے؟ سارے صحابہ کا دادا ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم غریبوں کو سینے سے لگانے والا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نہیں، نام سنا، محمد ہمارے بڑی شان والے، پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ آج اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ان کی داڑھی ٹوپی دیکھ کے نہیں، یہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ یہ حضور کے دین کے سپاہی ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا جامع میاں کا رنگ روپ دیکھ کے؟ نہیں، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے غلامی مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ فرماتا ہے مومنوں پر احسان کیا عظمت والا رسول بھیج کر کے۔ یہ آقا کی شان ایسی ہے، جس طرح ہم حضور پر ایمان لائے نا، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں اسی طرح ہمیں حضور کے حسن پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس پر، حضور کے حسن پر، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہو کہ حضور کی طرح خوبصورت کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص حضور کے حسن میں کمی نکالتا ہے تو ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ مسلمان مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب دیکھو کمی نکالنے والے کون ہیں اور تعریف کرنے والے کون ہیں؟ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ اور اے سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اتنے سارے پیغمبر آئے، اس روئے زمین پر آدم آئے جو پہلے خلیفہ ہے اس روئے زمین پر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے آدم کے امت کے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا آدم کو دے کر،
मैंने तुम पर एहसान किया इब्राहिम को देकर, मैंने तुम पर एहसान किया इस्माइल को देकर, मैंने तुम पर एहसान किया मूसा को देकर, मैंने तुम पर एहसान किया जकरिया को देकर, मैंने तुम पर एहसान किया यहया को देकर, मैंने तुम पर एहसान किया ईसा रूहुल्लाह को देकर। किसी पैगंबर की आमद पर किसी उम्मत को अल्लाह ने खिताब न किया कि मैंने एहसान किया, लेकिन ये उम्मत मुस्तफा अपनी किस्मत पर नाज करो। जब अल्लाह अजमत वाला, रिफात वाला, बुलंदी वाला रसूल हमें दे रहा है तो कह रहा है ए मोमिनो सुनो, अबू बकर सुनो, अली सुनो, उमर सुनो, शोएब सुनो, तलहा सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, ख्वाजा करीम नवाज सुनो, मखदूम अशरफ सम्मानी सुनो, इस मजमे में आए हुए लोगों सुनो। हमने तुम पर एहसान किया मुस्तफा को भेजकर, तभी तो हम जो भी है गौसे आजम कचौटा की धरती से ऐलान करते हैं मिसाल मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा ना चमके महले अनवर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम जिंदा। दोस्तों, ये अल्लाह ने एहसान किया क्या? अपने महबूब को दे करके, महबूब को दे करके। अब महबूब से पूछते हैं महबूब आपका एहसान क्या है? तो मेरे आका फरमाएंगे मेरा एहसान ये है कि मैंने तुम्हें हसन और हुसैन को दिया, मेरा एहसान ये है कि मेरी उम्मत की रुश्द और हिदायत के लिए मैंने अपने शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी को तुम्हारे हवाले किया। आज ये मुकद्दस माह बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीरों के पीर हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का है। बोलो और बुलंद आवाज से। किसका महीना है? गौसे आजम का महीना है। मेरे दोस्तों, गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, इतनी बुलंद है। अगर एक जुमले में मैं आपको सिर्फ इशारा करना चाहूं तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हुजूर गौस पाक का एक ज़ौक़ था, शौक था, जब कोई हाजी बगदाद जिलान से निकलता तो आप उस हाजी को छोड़ नहीं जाते। आप भी छोड़ते हैं कि नहीं? क्यों छोड़ते हैं? आज हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं, कल हमें भी कोई छोड़ने जाएगा। यही अकीदा रख के जाना चाहिए। आज हम छोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह हमको भी कोई हज की भी छोड़ने जाएगा। तो गौस पाक बचपन में जो हाजी जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, छोड़ने के लिए जाते हैं। एक जगह हाजियों के काफिले को छोड़ते छोड़ते काफिला दूर तक चला गया। गौस पाक पलट करके जल्दी से आए और उसी जिलान में आपके घर के बगल में एक बुलंद जगह थी। उस बुलंद मकाम पर खड़े हुए और अपने पंजे के बल पर कूद कूद करके, छोटे थे, हाजियों के काफिले को देख रहे हैं। मैं पूछता हूं ए गौस पाक इतनी मोहब्बत काफिले से क्यों थी? तो मेरे गौस फरमाएंगे ये गुनहगार मेरे नाना के उम्मती मेरे नाना के शहर में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। और आपकी माँ परेशान हुई कि अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ चले गए। घर में तलाशा, कहीं नजर ना पड़ी। घर के बाहर क्या देखती हैं? एक बुलंद मकाम पर गौसे आजम खड़े हैं और अपने पंजे के बल पर हाजियों के काफिले को देख रहे हैं। और उनकी माँ इसके साथ साथ क्या देख रही मालूम है? कि गौस पाक खड़े हैं और खाने काबा उनका तवाफ कर रहा है। खाने काबा उनका तवाफ कर रहा है। तभी आला हज़रत ने फरमाया सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ,
काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम कारकुन हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इतना अनमोल काम लिया, जिस काम के ज़रिए आज सैकड़ों की तादाद में हुजूर के दीवानों ने हुजूर की शान को सुना। अल्लाह ताला इस इलाके की इस कमेटी को उरूज अता फरमाए, इस्तिकामत दीन अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दीन और खल्क की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इशा से लेकर के अब तक बैठ करके आपने साबित कर दिया कि अगर कोई अपनी मर्जी से बैठता है तो बैठा, वो उठ के चला गया, और जिसे मुस्तफ़ा बैठाते हैं वो उसी वक्त उठता है जब मुस्तफ़ा चाहते हैं। तो आप और हम सब आए भी नहीं अपनी मर्जी से, बैठे भी नहीं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये ऐसी पाक महफिल है कि जिस महफिल के बारे में हदीस कुदसी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां मिलाद की महफिल होती है अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, ए जिब्राइल जाओ उस महफिल को अपने पर के साए में ले लो। जिब्रील अमी आते हैं, पूरी महफिल को अपने पर के साए में लेते हैं, फिर आसमान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह पूछता है, ए जिब्राइल जाओ देखो उस महफिल में मेरे बंदे मांगते क्या है, मुझसे चाहते क्या है। तो जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, मौला उस महफिल में सब नेक नहीं है, कुछ नेक है बस, और बाकी तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल उनके गुनाहों को क्यों देखता है, ये देख किसकी महफिल में बैठे हैं, किसकी महफिल में आए हैं। हजरत जिब्रील अमी आते हैं, फिर अर्ज करते हैं मौला की बारगाह में, मौला कुछ तो सिर्फ महफिल को देखने आए थे जो बैठे भी नहीं थे। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील क्या तुझे नहीं मालूम कि किसकी महफिल को देखने आए थे, जाओ उनसे पूछो वो चाहते क्या है। मेरे दोस्तों ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है, कीमती वक्त है। आप इस मुकद्दस लम्हात में अपने रब से मांगो, ए अल्लाह जब तक जिन जिंदा रहे तेरे महबूब की मोहब्बत में जिंदा रहे। और दूसरा सवाल ये करो इस वक्त, ए अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, 5 वक्ता नमाजी बना दे। मेरे दोस्तों अगर आज फजर की नमाज हमने पढ़ी तो हमारा रात का इतना लंबा बैठना कामयाब हो जाएगा। इस तरीके से कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, जिन्होंने नमाज फजर पढ़ ली समझ लेना उन्हें सरकार ने बुलाया था, और इस प्रोग्राम का इनाम नमाज की सूरत में था फरमाया है। तो कमेटी वाले भी खास तौर से, क्योंकि अक्सर जलसा कराने वाले तो कई दिनों से नमाज को गुल कर देते हैं। मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इबादत क़यामत के दिन जो पहला सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। मेरे आका फरमाते, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मिराज है। मेरे दोस्तों अफसोस तो उस वक्त होता है जब आप अजान सुन के भी पान की, चाय की, होटलों से आप दुकान से बाहर निकलते नहीं। ये मुसलमानों अगर चाहते हो कि तुम बाकी रहो इस धरती पर, आज आप देखो कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें होती हैं, सैकड़ों। आपको भी नहीं मालूम कि आपके दादा की कौन सी कब्र है, परदादा की कौन सी है, लकड़ दादा की कौन सी है। लेकिन दोस्तों इसी कब्रों में कुछ कब्र तो ऐसी है जिनसे हमारा खून का कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत अलाउल हक नबी, सिराजुद्दीन खियानी की, महबूब इलाही, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी,
सरकार शाह मीरा, ये ऐसी कब्रें हैं जो सदियों पहले हमारे पैदा होने के दुनिया से चले गए, उसके बावजूद भी हम अपने दादा की कब्र को नहीं जानते, लेकिन दादा और ख्वाजा की कब्र को जानते हैं। पता क्या चला? जमीन उस शख्स को कयामत तक जिंदा रखती है जो आदमी मुस्तफा की मोहब्बत में खुदा की इताअत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारता है। अगर चाहते हो ये जमीन तुम्हें भी जिंदा रखे, ये जमीन तुम्हें भी बरकरार रखे, ये जमीन तेरे जिस्म को ना खाए, ये जमीन तुझे धसाए ना, ये जमीन तुझे परेशान ना करे, ये जमीन पर तू चैन से सो जा, ये जमीन पर तू इत्मीनान से सो जा, ये जमीन पर तेरा कफन भी मैला ना हो। तो दोस्तों एक ही चीज है, जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं ना। तो प्यारो, ये जमीन की सख्ती बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हर आदमी को यहां का सफर करना है, हर औरत को करना है। हम तो ये देखते हैं कि मर्द तो मर्द, औरतें तो साल साल नमाज नहीं पढ़ रही हैं। आए मेरी मिल्लत की माँ बहनों, इतना याद रखना, कब्र में जाकर के ना शौहर की मोहब्बत काम आएगी, ना औलाद की वफादारी काम आएगी, ना कोई काम आने वाला है। अगर काम आएगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसका मफहूम में पेश करता हूं। हुजूर फरमाते हैं, जिसने पाबंदी से नमाज को अदा किया, रोजे को रखा, अपने फराइज की अदायगी की, सदका अदा किया, इखलास के साथ जिंदगी गुजारी, जब वो आदमी कब्र में जाता है और अगर आज़ाब के फरिश्ते उसकी कब्र में आना चाहे तो असर की तरफ नमाज रोकेगी, किसे मत सताओ, ये नमाज की पाबंदी किया करता था। मेरे दोस्त, ए मुसलमानों, ये सोचो हम किस गफलत की जिंदगी में जी रहे हैं। हमें सब मालूम है, उसके बावजूद भी हम बेदार नहीं हैं, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। हम इसमें परेशान हैं कि एनआरसी ना आए, फला चीज ना आए, इसमें हम डरे हैं। हम डरे हैं कि हुकूमत कहीं बदल ना जाए। मेरे दोस्तों, उससे ज्यादा अपने रब से डरो, उससे ज्यादा अपने रब से डरो। वो रब तो ऐसा है, अगर तुम उसके फरमाबरदार बन गए, उसकी इताअत करने वाले हो गए, तो वक्त के फिरौन के चैलेंज पर जब मूसा पैदा हुए तो मूसा की मां को अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मूसा की मां, फिरौन के खौफ से घबरा मत, अपने इस हसीन बेटे को एक टोकरी में लेकर के समुद्र के हवाले कर दो। जब अल्लाह पैदा कराना चाहता है तो मूसा की हिफाजत भी रख चाहता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारा रब कौन है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट में जिंदा रखता है? हमारा रब कौन है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, कुएं में से इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके वालिद बेपनाह मोहब्बत करते थे, सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया। छोटे से थे, खिलाने के बहाने बस मार्केट में लेकर के गए और लेके जाने के बाद कुएं में डाल दिया। और यहां कुएं में डालना था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद के दिल में बेकरारी मच गई, बेचैनी मच गई। मैं ये बताना चाहता हूं, जब अल्लाह बचाता है तो कैसे बचाता है? जैसे समुद्र, जैसे कुएं में फेंकना चाहा और अल्लाह हिफाजत करना चाह रहा है, फेंकना चाहा, अल्लाह ने उस कुएं में, वैसा कुआं था जो उस आबादी जॉर्डन का सबसे पुराना कुआं था, सबसे पुराना ऐसा कुआं
जिसके अंदर कबूतरों ने अपने मकान बना लिए थे। लेकिन जब वो लोग ने सोचा ऐसे कुएं में हम फेंक देंगे, यूसुफ का जिस्म चितरा चितरा हो जाएगा, सांप जैसे जानवर यूसुफ को खत्म कर देंगे। लेकिन जब अल्लाह बचाना चाहेगा, जैसे फेंकना था, अल्लाह ने हुक्म दिया कुएं के एक पत्थर को, क्या हुक्म दिया कि मेरा फर्जंद, मेरा एक सौहरे बंदा, मेरा एक नेक बंदा तेरे शिकम में आ रहा है। एक कुआं, तुझे इस पत्थर को हुक्म है कि पानी से निकलकर यूसुफ के जिस्म को तकलीफ मत देना। जैसे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका, एक पत्थर पानी से निकला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अंदर समेट लिया। और समेटना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नींद आ गई, अल्लाह सुला रहा है, सो गए। भाई समझे कि भाई तो मर गया, लेकिन अल्लाह अगर जीना चाहता है, अगर अल्लाह बचाना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला, भाई लोग सब समझे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मर गए। लेकिन चंद लम्हों के बाद आपकी आंख खुलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। फिर आप देखते हैं मैं कहां आ गया। अचानक से अल्लाह जिब्रील अमी को हुक्म देता है, इस कुएं की तारीखी में कहीं यूसुफ को डर न लग जाए। ए जिब्रील जाओ, यूसुफ को बता दो कि तुम डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ में है। तो रब तो ये है, हमारा रब तो वो रब है जो अगर अंबिया को आग पर जलाया जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की जात पर इतना भरोसा रखते हैं, आग पर कदम रखते हैं, अल्लाह उस आग को गुलाब में तब्दील कर देता है। ए बंगाल के लोगों, ये मत डरो कौन क्या कर लेगा, अपने रब से डरो, अपने रब से डरो, उसके करीब आ जाओ। हमने तो ये देखा है, जो जिसके ज्यादा करीब आता है, जो जिसके ज्यादा करीब आता है, तो कुर्बत क्या करती है। अगर किसी औरत की मोहब्बत में तुम उसके करीब चले जाओ, क्या होगा, समाज कहेंगे कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की है। अगर किसी से दुनियावी मोहब्बत कर लो, लोग मजाक बनाएंगे। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत तो ऐसी है, जितना करीब जाओगे इतना रब तुमसे करीब हो जाएगा, इतना करीब हो जाएगा। और ये मोहब्बत का मजा तो ऐसा है कि बेदब शाबाशी से पूछो तो कहेंगे क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब उनको छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। इस इलाके के मुसलमानों, अपने रब के करीब हो जाओ, अपने रब को राजी कर लो। वो तुमसे अगर खुश हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ना हटा सकती है, ना मिटा सकती है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, अदा तेरे, ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खासतौर से अपने घरों में आप लोग औरतों को तंबीह करो कि वो नमाज की पाबंदी करें। आपकी अगर घर में औरतें नमाज पढ़ेंगी तो बच्चे भी पढ़ने वाले हो जाएंगे। जब आप मस्जिद में जाओ नमाज के लिए तो अपने घर से छोटे बच्चे को लेकर के जाओ, छोटे बच्चे को लेकर के जाओ, डंडा मत लेकर के जाओ, अपने बच्चे को डंडा बना करके लेकर के जाओ और उसे कहो बेटा बैठो जब तक मेरी नमाज ना हो जाए। आज तुम उसे लेकर के जाओगे, कल जब तुम दुनिया में नहीं रहोगे वो आपकी आदत को याद करेगा कि मेरे दादा मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाते थे। अब जब तो दुनिया में नहीं रहेगा, वो जब जब मस्जिद की तरफ जाएगा सवाब उसे भी मिलेगा, तेरी रूह को सुकून। मेरे प्यारों, वक्त बड़ा नाजुक है, बड़ा पुरफितन दौर है। हम सबको अपने ईमान की हिफाजत करना है और हिफाजत का जरिया मोहब्बत रसूल है और उस मोहब्बत को बचाने का जरिया नमाज की पाबंदी है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबका बैठना कबूल फरमाए, जो कोई भी बातें हुई उसे कबूल फरमाए और कोई भी मेरे जुमले में कसदन सहमन
کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں جو خدا کے شان شان نہ ہو، تو اللہ کے حضور ان تمام حاضرین کو اپنا گواہ بنا کر کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان بھی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔